Hello my dear students, I hope you all are fine. Today in this video, let's continue our chapter which is getting to know plants. This chapter is in biology. Okay. In the last video lecture, we completed the root part. Okay. We started the plant parts, okay, which is categorized mainly into two types, that is root system and shoot system. We understood what is root, their types, and in the last video we completed the function of the roots. फंक्शन ऑफ द रूट कौन कौन से थे? पहली चीज थी दैट इट हेल्प्स अ प्लांट टू स्टैंड अपराइट, फर्स्ट थिंग, okay, between the soil, inside the soil. Second one is that its function is to absorb the water and minerals from the soil and provide to rest of all plant parts. Third thing, that it holds the soil particles very firmly so that it will prevent the soil erosion. मैंने soil erosion का मतलब आपको समझाया था कि the removal of top soil is known as soil erosion. अब वो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, that is either with the help of water, पानी का बहुत तेज़ बहाव हो तो हो सकता है, बहुत तेज़ी से अगर wind blow हो रहा हो, so at that time also the soil erosion can be possible and some other natural phenomena. Okay, so roots है वो soil को firmly hold करके रखते हैं. Due to that reason, it will prevent the soil erosion. And last but not the least, that some roots are modified so that they can store food. मतलब कुछ roots ऐसे designed और ऐसे structured है कि जिसमें plant है वो अपना food है वो root part में store कर सकते हैं. For example, carrot, radish, turnip, beet, etc. So ये जो आप जो भी गाजर खाते हो, शलगम खाते हो, मूली खाते हो, सो वो सारी चीज़ें और कुछ भी नहीं है बट रूट जिसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है वो है. ओके, सो कुछ कुछ रूट्स ऐसे होते हैं कि मॉडिफाइड होते हैं कि जिसके अंदर प्लांट है वो अपना रिमेनिंग फूड है वो स्टोर कर सकता है. ओके, सो दैट वाज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द रूट. देन हमने एक एक्टिविटी की थी जिससे हम प्रूव कर सके कि यस, प्लांट कैन एब्सॉर्ब वाटर. Okay, so for that we have done that one beaker we took, pour some water in it and just pour some oil so that one layer can be created. Okay, and puts one plant into it. Okay, and in another beaker we just kept water inside it and mark it. In the next day we observe that in the first beaker the level of water get decreased, which proves that yes, the plant can absorb the water. Now today in this video we will continue the next topic. Okay, root के बाद कौन सा plant part हम बोल सकते हैं? Yes, exactly, that is stem. But before starting learning, I would like to appreciate two students, that is Miss Taslima Bhagat and Miss Afifa Natha. Beta, congratulations, you have answered correctly of all 6 jumble words. Okay, and remaining students, those who have tried but didn't answer in comment section, I would like to appreciate you also. But please try. I'm giving you more chances to be active, to be more attentive. Okay, so please next time whenever I am asking question, you must have to answer in a comment section. And one more reminder I would like to give you that बेटा अगर आप लोगों ने अगर अपना CW वर्क कभी भी शुरू नहीं किया है या किया हो बट आधे से अगर आपने छोड़ दिया है तो आप उसको कंप्लीट करना शुरू कर देना, बिकॉज विद इन शॉर्ट टाइम हम आपके पास से CW नोटबुक मंगवाने वाले हैं फॉर चेकिंग पर्पस. सो अगर आपने अभी भी अपना नोटबुक चेकिंग वाला नोटबुक राइटिंग अगर आपने अभी कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ अपना काम कंप्लीट कर दीजिएगा. ओके, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू तस्लीमा एंड अफीफा, वेरी नाइस वर्क. नाउ टुडे द क्वेश्चन दो उससे पहले हम जंबल वर्ड को सॉल्व कर देते हैं. ओके, सो लास्ट टाइम मैंने जो जंबल वर्ड दिया था दैट इज CONR. एक्चुअली जस्ट इतना ही फ्लिपिंग करना था, दैट इज COR एंड कॉर्न. ओके, PAYAAP, PA
फिर PAYA पपाया। ओके, नेक्स्ट वन इज विकी, एक्चुअली उल्टा करना है आपको, दैट इज कीवी। कीवी के अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन सी होता है एंड उसके अंदर एप्पल से भी ज़्यादा अमाउंट में विटामिन मतलब विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट है एंड ऑरेंज से भी ज़्यादा विटामिन सी उसमें होता है। सो अगर थोड़ा महंगा आता है आई अंडरस्टूड, बट अगर आप अफोर्ड कर सके तो आपको उसको खाना चाहिए। ओके, कॉर्न आपको पता है, उसको आप जब रोस्ट करके खाते हो आपको बहुत मज़ा आता है, उसके अंदर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सो आपको खाना चाहिए। इन शॉर्ट याद रखो बेटा कि कोई भी सीजन के अंदर कोई भी फ्रूट्स आए एंड कोई भी वेजिटेबल्स आए वो उस सीजन के लिए बहुत सूटेबल होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से आपको सफिशिएंट वो सीजन को सरवाइव करने के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स उसमें से मिल जाते हैं। सो इसलिए आपको हमेशा सीजनल चीज़ें खानी चाहिए। अभी मॉनसून सीजन चल रही है तो आपको पता है कि कॉर्न है वो आता है, तो कॉर्न आपको इधर आपको अगर बॉईल करके खाना है तो वो खा सकते हो, इधर आपको उसको रोस्ट करके खाना है तो आप खा सकते हो, लेकिन आपको खाना चाहिए। क्लियर? ओके, सेम फॉर द पपाया ऑल्सो। पपाया के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आईसाइट के लिए अच्छा है, आपके हेयर्स के लिए अच्छा है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ओके, सो समटाइम्स यू माइट कंप्लेन अस मैडम पेट दुख रहा है, ये है वो है। सो इफ यू कंज्यूम पपाया देन योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी कंप्लीटली एक्टिव एंड आपको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज एप्रिकोट। एक्चुअली एप्रिकोट हमें जैसे तैसे खाने को नहीं मिलते, अगर कोई बाहर की कंट्री से आ रहा है तो आपको ड्राई एप्रिकोट खाने को मिल जाते हैं। ओके, अब एप्रिकोट मतलब क्या, लेट मी टेल यू। जब हम लोग कोई भी ड्राई फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो पता है आप एक वाइट कलर के छोटे छोटे येलो कलर के लेते हो, आलू लेते हो, आप बोलते हो कि सूखा आलू। सो वो सूखा आलू और कुछ भी नहीं बल्कि वो एप्रिकोट होता है जिसको सुखाया जाता है। मोस्टली ये एक ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ पे ठंड होती है, जैसे हमारे यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड उस जगह पे मिलता है और बहुत ब्यूटीफुल येलो कलर का छोटा सा आंवले जैसा फ्रूट होता है, जिसको अगर आप मतलब पक्का वाला खाओ, मतलब येलो वाला, सो राइपन खाओ तो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है, खट्टा मीठा है। अगर आप ड्राई खाओ तो आपको पता ही है वो कैसा लगता है। सो वो जो सूखे आलू आप जो खाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, एप्रिकोट। खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, उसमें से कैल्शियम अच्छे से मिलता है। नेक्स्ट वन इज पंपकिन। पंपकिन जैसा तैसा कोई नहीं खाता, कद्दू जिसको हम बोलते हैं, लेकिन कद्दू हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट वन इज अनियन। अनियन के बिना आजकल कोई भी रेसिपी पॉसिबल नहीं है, सो लास्ट वन इज अनियन। सो आई होप यू गेट इट। ओके, ये कल की क्विज थी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है विच प्लांट प्रोवाइड 24 आवर ऑक्सीजन। कौन सा प्लांट आपको 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है? इसका जिक्र मैंने पुराने वीडियोस में, मतलब ये चैप्टर के वीडियोस में किया हुआ है। सो आपको ज़्यादा गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट अगर आपने वो वीडियोस देखे होंगे तो वो दो नाम आपको पता होंगे। वैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो 24 आवर्स ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये दो प्लांट का नाम मुझे चाहिए जो मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर, मतलब ये चैप्टर के वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इससे दो फायदे होंगे, आपको ये क्विज का आंसर भी मिल जाएगा, एज वेल एज आपको पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप उसको गो थ्रू भी कर पाओगे, है ना। सो दैट्स ऑल। अच्छा, हिंट भी दे देती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। एक प्लांट ऐसा है जो आपके घर में होना चाहिए, मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसकी बहुत अच्छी है, नाउअडेज लोग उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। एंड दूसरा है जिसका लीफ है वो ब्यूटीफुल शाइनी हार्ट शेप का होता है। Okay, so these are the hint which I provide you. These two plants will provide 24-hour oxygen. Remaining plants जो है वो मैं आपको next वीडियो में दिखाऊंगी कि कौन से plants 24-hour oxygen provide करते हैं। ओके, सो ये थी हमारी फन की बात। अब हम लोग जाएंगे लर्निंग के।
So today we will going to understand the shoot system. Okay, what is shoot system? Shoot system means the part of the plant above the ground is called shoot system. मतलब हमने उस टाइम पे डिस्कस किया हुआ था कि plant is mainly divided into two types, that is root and shoot. जो भी underground grown है that is considered in root system, and जो भी above the ground होता है उसको हम बोलते हैं shoot system. So we have completed the root system in the previous videos. Now it's time to understand about shoot system one by one. So today I will start the first main thing of the shoot system, that is stem. Okay. Shoot system consists of what? So shoot system consists of branches, leaves, stems, flowers, fruits, seed, etc. So these things are considered in shoot system. So हम सबसे पहले start करेंगे stem से. What is stem? So you can see over here very beautiful pink stem is given. So this plant part, मतलब कौन सा plant part होता है? The plant part which bears branches, leaves, flowers, birds, fruits and seeds are called stem. Look over here in the video, you can see that root part है वो आगे जाके stem से attach है. एंड स्टेम्स के साथ फिर क्या है, ये देखो ब्रांचेस उसकी निकल रही है अलग अलग. ओके, एंड ऑन द ब्रांचेस यू कैन सी द लीव्स आर प्रेजेंट along with fruits, birds, flowers. ओके, सो रूट है उसके साथ जो कनेक्टेड चीज है स्टेम, उसको बोलते हैं स्टेम, और स्टेम के साथ ये सारी चीजें अटैच्ड होती है. सो डेफिनेशन उसकी ऐसे ही बनती है कि द प्लांट पार्ट विच बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड, फ्रूट एंड सीड्स आर कॉल्ड स्टेम. ओके, अब स्टेम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डीप में पढ़ते हैं. सो ओवर हियर यू कैन सी दैट इट इज रिटन द प्लेस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस एंड लीव अराइव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड नोड. अब फर्स्ट चैप्टर में हम लोग प्लांट पार्ट्स पढ़ चुके हैं, उसमें हम नोड एंड इंटरनोड पढ़ चुके हैं. सो नोड मीन्स व्हाट, कि स्टेम के जो पार्ट में से, ये स्टेम है, वो स्टेम के जो पार्ट में से ऐसे ब्रांचेस एंड लीव्स निकलते हैं. सो ये पार्ट को बोला जाता है क्या, नोड. तो यहाँ पे कितने नोड है, एक पहला नोड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और सातवां निकलने वाला. सो टोटल 6 नोड्स आर प्रेजेंट ओवर हियर. नोड का मतलब क्या, जिस पोर्शन से स्टेम के अंदर से ब्रांचेस एंड लीव्स निकल रहे हो वो. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज इंटरनोड. अब इंटरनोड किसे बोलते हैं? इंटरनोड मीन्स, सी ओवर हियर वन नोड इज देयर एंड ओवर हियर द सेकंड नोड इज देयर. So the space or the stem between these two node is called internode. Okay, मतलब ये नोड है पहला और ये नोड है दूसरा. So इसके बीच में जो ये इतना पोर्शन है, ये जो मैंने completely रेड कलर कर दिया, so उसको बोलते हैं क्या, इंटरनोड. ओवर हियर ऑल्सो आई एम कलरिंग इट विथ रेड so you can get it. So इतना पोर्शन है, the stem between two nodes is known as what, internode. Clear? Okay, moving to the next, that is apical bud. Apical bud मतलब क्या, apical bud means the tip of the stem or branch is called apical bud. मतलब apical bud का मेन काम क्या है, आपके प्लांट की हाइट बढ़ाना. ओके, छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, फिर उसमें से या तो ब्रांचेस अलग निकलेगी, ओके, या तो फिर वो स्ट्रेट अपराइट ग्रो हो. सो इट इज नोन एज एपिकल बड. वो पहले जब छोटी सी पोजीशन में होता है, जब ग्रोइंग पोजीशन में होता है, सो ग्रोइंग स्टेज में वो जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिकल बड. और एपिकल बड का काम क्या है, टू प्रोवाइड हाइट, और मेनली आपके प्लांट के ग्रोथ को हेल्प करता है, ग्रो करने में उसको हेल्प करता है, उसकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज एक्सिल. एक्सिल किसे बोलते हैं? एक्सिल मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो दैट सपोज ये स्टेम है, वो आगे जाके ब्रांच में डिवाइड हो रही. सो यू कैन सी दैट एक पर्टिकुलर एंगल बनाया जाता है. ये स्टेम है स्ट्रेट, और उसमें से आप देख रहे हो ऐसे एक एंगल बन रहा है. सो दिस एंगल इज नोन एज व्हाट, एक्सिल. ओके, लीव्स आर मेक an angle with the stem is known as axil. So we understood total 4 things. The first thing is that the stem where the branches and leaves arrives, so that part, that stem part is considered as a node. The stem between two nodes are known as internode,
Third thing, axillary apical bud, the tip of the stem or branch which bears a bud is called apical bud. Okay, apical bud इसको भी हम काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द लीव्स विच मेक्स एन एंगल विद द स्टेम इज कॉल्ड एज एक्सिल. मतलब स्टेम एंड लीव्स के बीच में जो एंगल होता है, ओके, वो पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्सिल. So this is the basic structure of the stem. Now we are moving for the function of the stem. So first one is that the stem helps to, बेटा stem and stem दोनों अलग चीज है. मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? STEAM लिखते हैं. अब STEAM स्टीम वो स्टीम होता है, मतलब जो आप कुकिंग करते हो और उसमें से जो निकलती है वो भाप, उसको हम बोलते हैं स्टीम. ओके, बट ओवर हियर हम प्लांट पार्ट की बात करें, सो यू मस्ट हैव टू राइट STEM. So the stem helps to keep the plant upright. मतलब प्लांट को सीधा खड़े रहने में स्टेम है वो हेल्प करता है. ओके, अगर उसकी स्टेम वीक होगी तो आपको पता है इट विल क्रिएट अ क्लाइंबर और क्रीपर. ओके, the stems serves as a link between roots, leaves and flowers. Means what is the function of the stem? Over here you can see inside the photo that root, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, इन सबको कौन कनेक्ट कर रहा है? इन सबको एक ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर उसको कनेक्ट कर रहा है. सो दैट इज नथिंग बट द स्टेम. सो स्टेम इज कनेक्टिंग द रूट सिस्टम विद द रिमेनिंग प्लांट पार्ट्स. Next one is the stems carries water and minerals from the roots to the leaves and different plant parts. Now let's see the main function. What is the main function of the stem? That you know that the plant require water and minerals for the performance of a food process. So for that what happened? The roots are absorbing the water and minerals. Now it passes to the stem, and stem's function is to just distribute or transport this water and minerals to all plant parts, including buds, including leaves, including flowers and all. Okay, so likewise its function is to transport water and minerals to rest of all plant parts from the root. अब इसका उल्टा, it also carries food manufactured by leaves to different plant parts. मतलब क्या कि who will prepare the food inside the plant? In the first chapter we understood that leaves are performing leaves are making the food with the help of photosynthesis. The plants make their food on their own. This process is known as photosynthesis, and this process is done by the leaves. So leaves क्या करते हैं? वो खाना बनाते हैं plants के लिए. अब वो खाना distribute कौन करेगा? The stem. The stem will going to collect this food and transport it into the remaining plant parts. इसका काम एक जोमेटो जैसा है ना? आपको ऐसा लग रहा होगा. जोमेटो का काम क्या है? मेन जगह से आपके कोई भी ड्रिंक है और फूड है उसको सोर्स से आप तक पहुंचाने का. सेम वे स्टेम भी तो यही कर रहा है. स्टेम भी जोमेटो जैसा ही काम कर रहा है. इट इज ट्रांसपोर्टिंग द वाटर from the roots to remaining plant parts and transport the food from the leaves to remaining plant parts. Okay, so इसका काम एक जोमेटो जैसा है ना? Sounds funny. Okay. Next one is in some plants the stem has green pigment, hence they made food by photosynthesis process. अब some plants are having green stem, जैसे कि herbs की green stem होती है. ओके, कैक्टस की ग्रीन स्टेम होती है. सो जो भी प्लांट्स है, whatever the plants which bears green color stem, they can also perform photosynthesis process and make the food. Okay, for example cactus. Okay, in the desert region the cactus is growing. You know over there that cactus is having either no leaves or very small leaves. So who will perform the photosynthesis process? Because the main function is to do photosynthesis, but cactus do not have any leaves. So who will perform photosynthesis? Because without food plant cannot able to survive. So you see that cactus is having green color. It is having soft green stem. So this soft green stem will perform photosynthesis process. Why? Because it is having a green color pigment. अब ये green color के pigment के बारे में हम लोग 7th standard में डिटेल में पढ़ेंगे. So अभी के लिए आप उसको simply याद रखो.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टोटल 6 फंक्शंस है, हमने वन बाय वन देखे. सो लास्ट फंक्शन इज इन सम केसेस स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड. आपने रूट वाले पार्ट में देखा कि कुछ कुछ रूट्स ऐसे मॉडिफाइड है कि ताकि प्लांट है वो एक्सेसिव एक्स्ट्रा फूड है वो उसमें स्टोर कर सके. सेम वे स्टेम में भी ऐसा है कि स्टेम में कुछ स्टेम ऐसी होती है जिसके अंदर प्लांट है वो अपना फूड है वो एक्स्ट्रा फूड है उसको स्टोर करता है. जैसे आप लोग अपने स्टोर रूम में बाकी सारा जो भी चावल है गेहूँ है वैसे स्टोर करते हो, वैसे प्लांट पार्ट भी सम सॉर्ट ऑफ फूड है वो स्टोर करते हैं. ओके, कहाँ पे? कोई रूट में करता है, कोई लीव्स में करता है, कोई स्टेम में करता है. सो ओवर हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन: अनियंस, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक. Okay, so these four names, inside this plant the food is been stored in terms of modified stem. Clear? So याद रखना, अनियन, जिंजर एंड पोटैटो वो रूट पार्ट नहीं है, वो कौन सा पार्ट है? स्टेम पार्ट है. मैडम पता कैसे चलेगा? सो यू कैन डू वन एक्टिविटी. घर पे से एक अनियन ले लो, ओके, नियर बाई की सॉइल के अंदर उसको डिग कर दो, रोज उसको पानी सनलाइट सब प्रोवाइड करो. Slowly and gradually you will observe that from that a very beautiful green leaves comes up. ओके, जब कंप्लीट हो जाए तब आप जब उसको बाहर निकालोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे रूट्स होंगे वाइट वाइट. आप जो ग्रीन अनियंस खाते हो ना वो, ओके, और ये पोर्शन के ऊपर लीव्स होंगे लाइक दिस वे. सो आपको पता है रूट एंड लीव्स के बीच में कौन अटैच करता है? वो स्टेम अटैच करता है. सो इट इज कंसिडर एज अ स्टेम. Clear? Okay, same way for the ginger and potato. You can do it at your home. आप कर सकते हो इस activity को. Okay, I hope you get it. I hope you get the all function of the stems. Okay, next time I will come with one nice activity. Okay, and one another plant part. Till then, just stay happy, keep smiling, have a nice day. And one more thing, nature को preserve करो and nature को explore करो. Bye.